सभी को एक बार फिर से आप लोगों को जय मसीह की। Once again, I want to say to that I greet you in the name of Lord and Jesus Christ. मैं आशा करता हूँ आपके परिवार और आपके परिवार में और आप लोग सब खुश होंगे। I hope that your family and your parents are doing well. कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी। There is no problem in between your family member and mature family. रोज प्रार्थना चल रही है परिवार के लिए। We are praying for our parents every day. सब खुशहाल से होंगे। They are doing well. ओके, अपन वचन में जाएंगे। Let's go to sermon. आज मैं आपको पुराने नियम से बताने जाऊंगा। Today I want to talk about Old Testament. मैं जब कल प्रचार तैयार कर रहा था, When I was preparing the sermon, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या तैयार करूँगा। I didn't understand anything that what should I prepare. सब प्रचार तो कर दिया है करके। I thought that whenever I going to take some portion that some people already preached on that topic. आप लोगों के बीच में क्या प्रचार करूँ करके सोच रहा था। I was thinking that what kind of a sermon I preach between you. और आप लोगों ने सारी बातों को सुन रखा करके मैं सोच रहा था। I was thinking that you hear all things about the Bible or Old Testament or New Testament. वहाँ पर प्रभु ने मुझसे बात किया। There God talked to me. मत डर। God said to me, don't upright. क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। Because I am with you. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु ने मुझे वहाँ हिम्मत दिया। God gave me a strength there. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। Praise the Lord. अपन जाएंगे पुराना नियम की गिनती उसकी पुस्तक है। Let's go to the book of Numbers. पुराने नियम की गिनती अध्याय उसका 22 का 21 से अपन देखेंगे। We will look the book, the number of book chapter 22. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर मैं आपको उस चैप्टर के बारे में और अध्याय के बारे में और उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। I want to say something out on that particular chapter 22. वो इस्राएलियों के लिए और मूसा वहाँ पर लिखता है उनके लिए। Moses wrote something for Israel's people. गिनती एक पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई। This number of book is written by Moses. वह पुराने नियम की एक छोटी किताब मानी जाती है। This is the fourth book of Old Testament. हालेलुया। Praise the Lord. इसके अलावा और भी 4 किताबें हैं। There is except if there are 4 more books. वो भी मूसा के द्वारा लिखी जाती है। That also were written by Moses. आप लोगों को तो पता होगा। You know that this all books are written by Moses. वो पुस्तक किस बारे में लिखी गई करके पता होगा। You know that to whom about the books are written. मैं आपको बताता हूँ। I want to tell about it. जो 5 किताबें हैं, those 5 books. वो नियम और कानून के बारे में लिखा गया है। Those 5 books are telling about the law or covenant. इस्राएलियों के लिए लिखा गया है। Those 5 books are written for Israel's people. हालेलुया। Praise the Lord. आपको मैंने इस पुस्तक के बारे में आपको बताया है। I said to you about these books. आपको पहले से भी बताया, फिर भी मैंने आपको बताया। You already know about it, but once more I told you. हालेलुया। Praise the Lord. आप फर्स्ट बिंदु में जाएंगे। We will go to first point. आप लिख सकते हैं। You can write. 2-3 पॉइंट में आपको बताऊंगा। I want to say 2 or 3 points. आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। I will explain also it. हालेलुया। Praise the Lord. फर्स्ट आप लिखो। First you can write down. परमेश्वर हमारे कामों को नहीं, The Lord is not our work. और हमारे दिल और सोच को वो जांचता है। The Lord is not only knows our work, but He also knows our heart. हालेलुया। Praise the Lord. अब परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है, Here the Lord wants to tell us. बाहर से हम कैसा भी काम करें, We do works in our outside or
in the eyesight, बाहर का काम अपन करेंगे, we will do in inside work. वो लोगों को पसंद आता है, That works like for people. लेकिन प्रभु के लिए अपन को सच्चे दिल से प्रभु का काम करना है। For God we work, for God we need to work in our heart. प्रभु के लिए अच्छे से काम करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होगा। If we do good work for God, God will be glad. हालेलुया। Praise the Lord. और जैसे डेली प्रार्थना करना, I say pray daily. हमेशा प्रभु की स्तुति करना, Always praise to God. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु उस बातों से प्रभु आनंदित होता है। Through these things God can be glad. प्रभु के वचनों को हमेशा प्रभु के साथ बैठकर पढ़ना, We always sit to the Lord and we always read the words. प्रभु की संगति में हमेशा रहना, We should always be with the God. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आप मेरे साथ देख सकते हैं You can see with me पहला शमूएल 16 का 7, 1 Samuel chapter 16 verse 7. वहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, There I want to tell something. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, The people or the human can see the type of means the people see our side means outside, परंतु यह मन को देखता है, but the Lord sees our heart. हालेलुया। Praise the Lord. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, एक अपने प्रभु के लिए क्या इच्छा है, वो सारी बातों को प्रभु देखकर उससे प्रसन्न होता है। The people sees our qualification of our outside, but the Lord sees our inside, our heart. मनुष्य के दिखाने के लिए अपने जो धर्म जो विश्वास कर रहे हैं वो दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के राज्य में पहुंचने के लिए, प्रवेश करने के लिए वो कार्य करें। We should not do the work for people or showing for people, but we need to work for the Lord that we may enter the kingdom of heaven. हालेलुया। Praise the Lord. दूसरा बिंदु देखेंगे, We will see the second point. कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, Sometimes we got many troubles in our life. वहाँ प्रभु हर रुकावट को भेजकर वो अपन को उस रुकावट से रोकता है। God sent many trouble to us that we may stop there. नाश होने से बचाने के लिए वो रुकावटों को भेजता है। God sent us that trouble to we are not going to face our life. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अपन को पता नहीं होती कि प्रभु की योजना क्या है। We don't know what is the plan of God. हालेलुया। Praise the Lord. अपन को प्रभु का जो प्रभु अगर अपन को रोक रहा है तो उसकी योजना को जानना जरूरी है। If a God is stopping you, it means that we need to know the plan of God. हालेलुया। Hallelujah. जैसे तो प्रभु रुकावट डालता है, जैसे बीमारी को डालता है, समस्या को डालता है, हर प्रकार की कहीं कहीं वो दरवाजे असफलता को डालता है। As the God gave many troubles and many diseases in our life, like diseases, and He closed the doors. ऐसी बाधाएं आती है तो अपन को समझना, अपन को प्रभु की आवाज को सुनने की जरूरत रहती है। There are many troubles are kept from the God in our life. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. तीसरे पॉइंट में जाएंगे। We will go to the third point. सच्चे जैसे आज्ञा पालन करना, Means we obey the truthfully or sincerely. सच्चे दिल से प्रभु की आज्ञा मानना। We need to obey the word of God with our heart. हालेलुया। Praise the Lord. केवल आज्ञा नहीं मानना, We should not only obey the word of God. उस पर चलने के लिए भी तैयार होना। We should be ready on walk that commandment. मूसा ने जो आज्ञा बताए, That commandments was given by Moses. उस आज्ञा को पढ़कर नहीं, That means we not only read that commandment, याद करके नहीं, not only by heart it, लेकिन उस पर मानकर और उसका चलने की कोशिश करें। but we need to walk according and we need to walk according that commandment. हालेलुया। Praise the Lord. मेरे साथ इसमें आप देख सकते हैं, You can see with me that मत्ती 15 का 8 में you can see with me the Matthew chapter 15 for 8. वहाँ पर लिखा है, There is a written, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, these people is praising to their lips,
पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। but their heart is far from me. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. अपन प्रभु को होठों से तो प्रभु का आदर करते हैं, We praise to the Lord with our lips. बाहर से तो आदर करते हैं, We praise to the Lord with our outside. लेकिन मन में क्या चल रहा है वो नहीं पता रहता अपन को। But we don't know what is happening in our inside. We don't know. प्रभु उसके मनों को जानता है। God knows our hearts and minds. और अपने सोचने से प्रभु पहले से उसको पता होता है। Before we think, God knows everything. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए मेरे प्रियो, That's why my beloved. सब प्रभु की इच्छा के अनुसार करें। That's why my beloved brother, we do whatever we do the will of God. We need to do will of God. प्रभु की बात मानना सीखे प्रभु लो। We need to learn the word of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज हम एक ऐसी घटना को देखने जा रहे हैं। Now we are going to such an event. मैंने आपको 3 पॉइंट से बात किया है। I talked with 3 points. आप लोगों को समझ में आया होगा। I hope you are understood that 3 points. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा। I want to tell us such an event that परमेश्वर हमारी जिंदगी से कैसे बात करता है। how God talk through our life. परमेश्वर कभी कभी तो सीधा भी बात करता है, Sometimes God talk through our life directly. और कभी कभी अलग अलग तरीकों से भी बात करता है। Sometimes He talks very differently way. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति के द्वारा Sometimes God talk through a person. बात करता है, He talk through a person. किसी जानवर के द्वारा भी बात कर Even सकता God है, talk through that animal also. और पास्टर के द्वारा भी बात कर सकता है। Through pastors also. हालेलुया। Hallelujah. वहाँ पर अपन को प्रभु बात करता है तो सुनने की जरूरत है मेरे प्रियो। There God talks. Therefore we need to listen that what God is saying to us. हालेलुया। Praise the Lord. अपन जाएंगे, जो मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ उस कहानी में जाएंगे। Let's go to that story which is I'm going to tell you. आपको उसके बारे में थोड़ा बताकर आगे बढ़ेंगे। I want to go further before I want to say something about that story. बिलाम और गधी के बारे में आज आपको बताऊंगा। I want to say the donkey and the prophet Balaam. आप लोगों को सबको पता होगा। As you know, or I hope you all know that story. आपने पहले भी सुना होगा। Yeah, I hope you heard it before. हालेलुया। Hallelujah. आपने ये भी सुना होगा कि गधी एक प्रचार करती है। हालेलुया। You hear also that the donkey has a priest. अपन उसको सारांश से देखेंगे। We will we will see it somewhere actually. मेरे साथ निकाले गिनती। Please open with me the book of Number. उसका 22 Chapter 22. 21 Verse chapter 22. 22 का 21। Verse 21. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर अपन देखेंगे। There we will see. हेडिंग में क्या लिखा हुआ है आप लोगों को आप पढ़ सकते हैं। We can read that what is the written on that heading. हालेलुया। Hallelujah. So Balaam rose in the morning and saddled his donkey and went with the princess of Moab. हालेलुया। बिलाम के बारे में आपको मैं बताऊंगा, वो क्यों जाता है और कहाँ जाता है और कौन भेजता है उसके बारे में बताऊंगा। I'm going to tell about the Balaam, that who is the Balaam and to whom by that Balaam was sent. I'm going to tell about these things. वो किसका पुत्र है। I want to tell that who was the son of that Balaam. हालेलुया। Praise the Lord. बिलाम एक भविष्यवक्ता माना जाता है। Balaam is considered as a prophet. वो भविष्यवाणी करता है। He prophets. जो बोलता है वो हो जाता है करके। He means whatever he says, it's happened. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. मैं आपको जो बिलाम को जो भेजता राजा के बारे में बताऊंगा। I want to say that to whom, by whom Balaam was sent, I am going to tell about that person. अपन देख सकते हैं 22 का 2 में। We can see the chapter 22 verse 2. कोई मेरे साथ कोई पढ़ने में मदद करें। Please read that word. And Balak the son of Zippor
So all the Israel has done to the Amorites. हालेलुया। Praise the Lord. जो वो बालक है वो सिपोर का पुत्र है। Balak is the son of Zippor. वहाँ पर जो बालक है वो इस्राएलियों की बहुत सारी संख्या को देखकर डर जाता है। Balak afraid to see the people. There were many people of Israel. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर उसको जो मतलब उसके पड़ोसी में जो राज्य होता है उसको इस्राएल हरा देता है। Israel defeat that country is next to that country. उनको देखकर वो बहुत डर जाता है। He afraid to see that people. तो वो सोचता है, He think that. उसको बिलाम के बारे में सोचता है। He thinks about Bilam. एक भविष्यवक्ता है। There is a prophet. उनका भाई जन है। उनका जो उनका जाति का है, उनका जो जाति का रहता है क्या बिलाम उनके जाति कास्ट। Oh, he is he was belong to his caste. हालेलुया। Praise the Lord. वो जाति भाइयों के में से था करके सोचता है। He was belong to that his brother's family. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर बालक बिलाम को लेने के लिए अपने दूत को भेजता है। Balak sends to servant to bring the Balak. वहाँ पर उसको पता रहता है। Here that he said that the Balak said to them. उसके बारे में उसको मालूम होता है वो कहाँ रहता है करके। He knows about that where he lives and where he stays. वो उस भविष्यवक्ता के बारे में जानता था। Balak knows about Balaam, जिसको वो आशीर्वाद देता था, to whom he blessed. वो धन्य होता था। That will be blessed. और जिसको वो श्राप देता था, To whom he cursed, और वो श्रापित हो जाता था। that person will be cursed. उसने ऐसी योजना बनाई। He planted a plan. इस्राएलियों को श्राप दे करके बिलाम को बुलाने भेजता है। Balak sent to a servant to Balaam that he want to curse the people of Israel. जो बिलाम भविष्यवक्ता है, The prophets of Balaam, बालक सोचता है बिलाम उसको श्राप देगा और वो निर्वस हो जाएंगे, उनको मैं हरा दूंगा करके सोचता है। Balak thinks that the prophets Balaam is going to curse on the people of Israel so that they will be weak or they will defeat by me. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर बालक के जो सैनिक और जो दूत है वो आते हैं बिलाम के पास। The servant of Balak came to Balaam. बिलाम को वो बोलते हैं तुम्हारा तुमको बालक बुलाता है करके। They said to the people, the prophets Balaam. He said the king of Balak is calling you. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर बिलाम उन दूतों को बोलता है। There the Balaam said to that servant. मैं प्रभु से पूछकर बताता हूँ। Balaam said to the servant of Balak that I will tell you after asking to the Lord. बिलाम परमेश्वर से बात करने को जाता है और पूछता है। Balaam went to talk to the Lord and said. परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। The Lord answered him. बिलाम तू उसके संग मत जा। The Lord said to the Balak that don't go with them. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर बोलता है वो जो इस्राएल लोग हैं उनको मैंने आशीष दिया है करके। The Lord said to the Balak that I bless the people of Israel. वो पहले से आशीष के भागी हो गए हैं करके बोलता है। They are the members of blessing already. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर जैसे अपन सीख सकते हैं जैसे शैतान जो दुष्ट शैतान की शक्तियों की जो मतलब ताकत होती है परमेश्वर पहले से अपन को ब्लेस कर देता है। As we learned here that the Lord is blesses already before the works of evil. वो सारी बातें अपन को जो दुष्ट शैतान के जो जादू तंत्र मंत्र होता है वो परमेश्वर वो लगने नहीं देता है। As the works of magician or as the work of evil, God cannot touch them.
हालेलुया। Hallelujah. पहली बार बिलाम को परमेश्वर ने मना किया। First thing that the Lord rebuked the Balaam. फिर बालक उससे अच्छे हाकिम को भेजता है और जो उसके राज्य में मतलब महल में सबसे अच्छे बुद्धि ज्ञानवान है उनको भेजता है। And after Balak sent a priest or wise man to the Balaam, उनके उसके लिए सोना कई प्रकार का मतलब धन लेकर आते हैं। and they went to the Balak to many kind of gifts as gold and like more. हालेलुया। Praise the Lord. अपन जल्दी जल्दी जाएंगे, टाइम हो गया है। We are going too very far because there is no time. ये कहानी तो आप लोगों ने सुन रखा है। I hope the more story you know. बिलाम से अपन सीख सकते हैं। Through Balaam we learn something. वो परमेश्वर उसको मना करता है, फिर भी वो जाने के लिए फिर दूसरी बार पूछता है। God refused to not go with that servant, but he asked again to the Lord. जो बालक है उससे वो गलत काम करवाना चाहता था। Balak want to do works that is which is against the will of God. फिर भी वो धन के पीछे लालच करता है। Because of greedy that prophets want to go with them. हालेलुया। Praise the Lord. जो मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, Which is the story I am going to tell you. वो कहानी तो आपको मैं बताया ही नहीं है। That story I didn't tell you. हालेलुया। Praise the Lord. अपन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। We will go quickly. मेरे साथ 22 का 21 पढ़ोगे। Please read with me chapter 20 verse 21. तब बिलाम और को उठा 20. और अपनी गद्दी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। हालेलुया। Praise the Lord. बिलाम परमेश्वर ने बिलाम को बोला, उसने प्रार्थना किया था तो परमेश्वर ने बोला जा करके बोला। Balaam prayed to the Lord and the Lord said to Balaam that go with them. बिलाम सुबह उठा, Balaam rose early in the morning अपने गद्दी पर बैठकर वो उनके हाकिमों के साथ चल पड़ा। and he settled down his donkey and he went with their princess. हालेलुया। Praise the Lord. 22 पढ़े। Please read 22. और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हालेलुया। Praise the Lord. उनके साथ कौन कौन था? Who all were in Balaam? बिलाम और उसके 2 दूत भी थे। There were 2 angels of God and Balaam. हालेलुया। Praise the Lord. और साथ में गधी भी थी। As well donkey also. हालेलुया। अपन जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। I want to tell it very shortly. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर गधी यहोवा वहाँ पर गधी वो रास्ते में जा रहे थे। When they were going to when were they going in a road? रास्ते में जा रहे थे। When they were going in a road, वहाँ पर गधी परमेश्वर का स्वर्गदूत को देखकर खड़ा हो जाता है the donkey saw the angel of the Lord and she stopped. और नंगी तलवार लेकर खड़ा होकर स्वर्गदूत खड़ा होता है। The angel had a sword. और गधी मार्ग को चढ़कर खेत में चले जाता है। The donkey returned on that road. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और फिर दूसरी बार वो दूसरा रास्ता को फिर चेंज करते हैं। That Balaam sent the another way. और फिर वहाँ पर यहोवा का स्वर्गदूत दिखा देता है। Again, the donkey saw the angel of the Lord. फिर गधी अपना मार्ग को बदल लेता है। Again, the donkey changed his way. 2 बार गधी अपना मार्ग को बदलता है। Donkey has changed his road 2 times. अपन और देखेंगे और वो रास्ते को बदलकर और दूसरे रास्ते पे जा रहा था। And we will see that he changed his way and he is going another way. वहाँ पर भी एक रास्ते में जा रहा था और स्वर्गदूत खड़ा होता है। There also she saw the angel of the Lord. वो रास्ता बहुत सकरा होता है। Their road was very narrow. वहाँ
कहीं आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते और कहीं पर भी वापस नहीं जा सकते, ऐसा रास्ता था। On that road we cannot move further or back or left or right because their road was very narrow. बिलाम उस गधी को देख देख के गुस्सा करने लगा। To seeing that donkey, Bilam got angry on that donkey. मेरी बात नहीं मान रही करके He said to donkey, "Why are you not obeying me? जहाँ पर जाना है वहाँ नहीं जाते करके Where you want to go, you don't want to go and you go another way." उस पर क्रोध करता है। He got angry on that donkey. हालेलुया। Praise the Lord. और उसके और बोलता है, गधी को बोलता है, बिलाम तू मजाक कर रहे मेरे साथ। And Balaam said to that donkey, "Are you kidding with me?" हालेलुया। Praise the Lord. और वहाँ गधी को बिलाम मारता है। And there Balaam beat that donkey. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. वहाँ पर बिलाम को स्वर्गदूत दिखाई नहीं देता है। There Balaam could not see the angel of the Lord. बिलाम की आंखें बंद हो रखी थी। The eyes of the Balaam were closed. आत्मिक आंखें बंद थी। Means his spiritual eyes were closed. जैसे मैं सोचना कि शारीरिक आंखें बंद थी। It means not that don't think that his physical eyes were closed. वो अपने लालच में डूब गया था। He dwelt with his greedy. हालेलुया। Praise the Lord. वो अपने धन के पीछे जो बालक ने उसको लालच दिया था, उस लालच में पड़ जाता है। He said that I am going to get something through that King Balak. हालेलुया। Praise the Lord. लेकिन वहाँ पर गधी स्वर्गदूत को देखता है। But there the donkey saw the angel of the Lord. वहाँ स्वर्गदूत को देखकर वो 3 बार हट जाता है उसके रास्ते से। There that donkey saw the angel of the Lord and he moved 3 times on that road. लेकिन बिलाम को वहाँ उसको पता नहीं चलता है कि क्यों गधी हट रही करके, उसकी योजना पता नहीं चलता। But the Balaam could not recognize that why this donkey is not going on this road. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. और गधी 3 बार क्यों हट जाती है? Why donkey removed on that road? हालेलुया। Hallelujah. वो बिलाम को बचाने के लिए हट जाता है। Because the donkey want to save Balaam. हालेलुया। Hallelujah. फिर वहाँ पर स्वर्गदूत परमेश्वर बिलाम की आंखों को खोलता है। There the Lord opened the eyes of Balaam. आत्मिक आंखों को खोलता है। The Lord opened the eyes of Balaam that was spiritual. वहाँ पर स्वर्गदूत उसको दिखाई देता है। There Balaam saw that angel. और स्वर्गदूत उसको बोलता है। And the angel of the Lord said to the Balaam. तूने गधे को 3 बार क्यों मारा करके? The angel of the Lord asked to that Balaam, why did you beat the donkey? हालेलुया। Praise the Lord. अगर तू इस गधे को मारता है, If you beat this donkey, अगर ये नहीं हटता, if this donkey was not side from this road, ये नहीं हटता तो आप निसंदेह आपको आप मर जाते करके बोलता है स्वर्गदूत। if this donkey was not removing from road, you were killed. हालेलुया। Praise the Lord. यहाँ से अपन सीख सकते हैं Here we learn something. प्रभु की क्या योजना है। We learn that what is the will of God. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की योजना को समझने की जरूरत है। We need to understand the plan of God or the will of God. प्रभु जब इंसानों को समझ में नहीं आता है, इंसान से कुछ हो नहीं सकता है। When the people cannot understand and when people cannot do anything, उस टाइम प्रभु किसी को भी यूज कर सकता है। that time God can use to anyone or anything. किसी से भी बात कर सकता है। God can talk to anyone or anything. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अपन जल्दी जल्दी जाएंगे, 10 बज गया है, थोड़ा टाइम। We will go further or we will go fastly. हालेलुया। Praise the Lord. आपको मैं बताऊंगा इस गधी के बारे में जो सीखा हूँ, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। I want to say something about that donkey which is I learned from her. हालेलुया। Hallelujah. बिलाम के समान अपन को घमंड में नहीं रहना चाहिए। We should not boasting as Balaam did. प्रभु की बात मानने की जरूरत है। We need to obey the word of God. हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। We need to walk that is correct or which is the good in front of God.
भले ही कितनी भी मुश्किल हो, even many problems in our life, उसमें परमेश्वर हमारा साथ देता है। on that troubles, God may stand by us. हालेलुया। Praise the Lord. कल मैं बैठकर सोच रहा था, When yesterday I was thinking, परमेश्वर मैं तो अच्छे से समझा भी नहीं पाता हूँ, God, I cannot explain it very well. अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, I may not speak very well. प्रचार नहीं कर पाता हूँ। I'm not able to preach very well. ऐसे मैं सोच रहा था, I was thinking like that. यही प्रचार प्रभु ने मुझसे बात किया। Through it, God talked to me. प्रभु ने गधे को बात किया। The Lord talked to donkey. मैं सोच रहा था आपने प्रभु गधे से बात किया, प्रभु मैं तो उससे भी गए बिता हूँ। I was thinking that the Lord talked to that donkey, and I am no longer, I am not comparing to that donkey. मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, I don't know anything. कुछ बोलता हूँ वो समझा भी नहीं पाता हूँ। Whatever I speak, I cannot explain it very well. हालेलुया। Praise the Lord. दूसरा पॉइंट आप लिखना, Second point you can write. परमेश्वर की आज्ञा मानना We need to obey the word of God. और उस आज्ञा पर चलने वाले बनना है। We need to obey the word of God, and we need to walk on that commandment. और बिलाम के समान सोने चांदी की लालच नहीं करना, We should not be greedy as Balaam. ताकि हम परमेश्वर को भूल जाए उस लालच के कारण। Through that greedy, we may not forget the Lord. परमेश्वर जो दे उसमें खुश रहना, Whatever God gives us, we need to happy on that things. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर के भय और डर को मन में रखते हुए जीवन बिताना। We need to live as God is. We need to fear the Lord, and we need to live. हालेलुया। Hallelujah. चौथा पॉइंट लिखना, You can write fourth point. परमेश्वर वचन के द्वारा भी बात कर सकता है। God can talk through this verse. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, We need to walk according the will of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। We need to walk according to the words of God. लास्ट पॉइंट लिखना, You can write the last point. परमेश्वर जो चेतावनी देता है, The Lord is giving us a warning. दया की चेतावनी देता है। The Lord is going. The Lord gave us a warning of किसका चेतावनी? God is gave a warning to that. We need to not do that. हालेलुया। Praise the Lord. धन्यवाद। Praise the Lord. आप लोगों को इस कहानी को सुना है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। I hope by hearing it you understood it very well. कुछ गलत बोला होगा तो मुझे माफ करना। Please forgive me that I may have spoken wrong. टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं था और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। I had no more time, that's why I could not explain it very well. बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे सिखाई थी, वो आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर करी। Many things were taught by God. I said few of them to us. पूरा अच्छे से आप लोगों के सामने नहीं बता पाया। I could not explain it fully with you. कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को फिर से इस वचन के द्वारा आप लोगों को मैं बताऊंगा। If I will get more time, again I will tell about it very clearly. टाइम हो गया, अपन इस सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। There is a time now, that's why we will end it here. और लास्ट प्रार्थना विपिन ब्रदर करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर था, अपराधियों के राजा, प्रभु के प्रभु पिता, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते पिता, आपके चरणों में आते, आपसे प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर था। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक आपके दास के द्वारा पिता आपने हमसे बातें किया पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर था। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ना हम सिर्फ केवल सुनने वाले और ना सिर्फ पढ़ने वाले बल्कि उस पर मनन करने उस पर चलने वाले भी बन पाए पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से बालाम ने खुदा परमेश्वर धन दौलत का लालच किया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हम उस धन दौलत के पीछे ना पड़ने वाले बन पाए पिता परमेश्वर। हर एक को जो सुना खुदा परमेश्वर था उसे शैतान चुराने वाले ना बन पाए पिता परमेश्वर। उसको अच्छे से खुदा परमेश्वर मन में रखकर खुदा परमेश्वर हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन लागू करने के लिए पिता आप हमें सहायता मदद करना पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते पिता। आपके दास को आपके हाथों में देते खुदा परमेश्वर, और भी बहुत इस्तेमाल करना ताकि खुदा परमेश्वर कई लोग
लोग खुदा परमेश्वर पिता उनके थ्रू खुदा परमेश्वर आप पर विश्वास करने वाले बन पिता आपके नाम को धन्यवाद देते पिता। आगे का समय पिता आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना सुना धन्यवाद करते उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।